Hey students, today we will discuss about our new topic land resources and importance of forests and conservations of forests in this video in detail. This is Nu Patel. Stay tuned with this channel. Thank you so much. Students, today we will discuss about land resources यानी कि जमीन स्रोत. A large area covered chiefly with numerous trees and undergrowth is called a forest. उसको जंगल बोलते हैं जहाँ पर बहुत सारे trees पेड़ लगे हुए होते हैं. Forests are an invaluable source of wealth of nation यानी वो राष्ट्र की संपत्ति है बेशकीमती. There are different types of forests in India because of its cycle, the physiography and climate. There are 5,000 types of trees in India. India ranks 10th in the world in terms of availability of variety of vegetations. यानी कि इंडिया के अंदर 5,000 से भी ज़्यादा टाइप्स ऑफ ट्रीज़ अलग अलग प्रकार के मौजूद है और भारत का रैंक 10th इन द वर्ल्ड पूरे विश्व में 10वां क्रम है अवेलेबिलिटी ऑफ वेराइटी ऑफ वेजिटेशंस वनस्पति के अलग अलग टाइप्स के अंदर. सिंस एंशिएंट टाइम्स इंडिया इज रिनोन्ड फॉर मेडिसिन दैट मीन्स द मेडिसिनल हर्ब्स. There is mention of almost 2,000 varieties of herbs and trees in Ayurveda. यानी कि यहाँ पर हर्ब की बात है, औषधि की बात है, तो 2000 के टाइप्स के अलग अलग औषधि और उसके पेड़ और उसके वनस्पति हमारे आयुर्वेदा के अंदर भारत देश के अंदर अवेलेबल है. Evergreen forests are found in the northeastern parts, mountainous regions and the Andaman and Nicobar island of India. Simple English है, you can read easily. Evergreen are also named as there is no particular season for the trees to shed their leaves. Evergreen का meaning हर साल हरे भरे रहना. Therefore these forests remain green throughout the year. पूरे साल ही हरे भरे रहते हैं. These trees are usually 30-35 meter in height. Bamboo, teak, sal, mahogany and the shisham are the main trees of this forest. यानी इस जंगल के ये जो बैम्बू है, टीक है, साल है, mahogany है, शीशम है, ये सारे ट्रीज इसी फॉरेस्ट के हैं. Evergreen forest. Deciduous forests are found in the Vindhyachal mountain ranges, the Satpura hills, the foothills of the Himalayas, the foothills of the eastern and western Ghats of India. The main trees of these forests are teak, sal, mahuda, banyan and peepal. These trees shed their leaves in autumn. ये ज़्यादातर autumn वसंत ऋतु के अंदर ही होते हैं. The tidal or mangrove forests are most luxuriant around the delta area of large rivers and in sheltered bays where the annual rainfall is very high. वहाँ पर वार्षिक जो रेनफॉल होता है, बारिश होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है, डेल्टा एरिया है वहाँ पर. The Indian tidal or the mangrove forests are mainly situated on the Gigantic Delta, that is the Gangetic Delta, and in coastal plains in West Bengal. वेस्ट बंगाल के जो कोस्टल प्लेन्स है, मैदान है, वो भी समुद्र किनारे के मैदान, call the Sundarbans, mangroves, sundari, palms, केवड़ा, चेर grow in this forest. यानी ये पेड़ होते हैं. The coniferous forests are found in the mountainous regions of Himalayas. Deodar, pine, spruce and beech trees grow in this forest. यानी सारे trees के types दिए हुए अलग अलग. बाजू में एक मैप है, ग्रीन एरिया है, ओके, लाइट ग्रीन एरिया है और कंट्रीज, ओके, जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज है उसके नेम है. The thorny forests are found in northwest Punjab, west हरियाणा, राजस्थान. यानी थॉर्नी का मीनिंग है कांटेदार जंगल, जिसका घना जंगल पूरा कांटों से बिखरा हुआ होता है, जहाँ पर वेजिटेशन भी थॉर्नी होते हैं, कांटेदार होते हैं. तो नॉर्थ वेस्ट पंजाब के अंदर, वेस्ट हरियाणा के अंदर और राजस्थान के अंदर, और साउथर्न की बात करें, वेस्टर्न की बात करें तो ऐसे एरिया के अंदर जैसे कि उत्तर प्रदेश, यूपी, तो यहाँ पर ऐसे कांटेदार जंगल दिखाई देते हैं. ट्रीज लाइक स्प्रूच, एकाकिया, दैट मीन्स कैक्टस एंड केपर आर फाउंड देयर. ये ज़्यादा यहाँ पर दिखते कैक्टस है, ओके, जो थॉर्नी होते हैं ऑब्वियसली, उसके ऊपर कांटेदार होते हैं. द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया का मैप मैंने आपको समझाया वही है, ओके. इसके अंदर अलग अलग नेबरिंग कंट्रीज़ और इसके साथ साथ इंडिया का मैप है जिसके अंदर ग्रीन एंड लाइट ग्रीन कलर दिया गया है जो वेजिटेशन ट्रीज के और फॉरेस्ट के लिए है. इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट्स. फॉरेस्ट्स आर वेरी यूजफुल इन द लाइफ ऑफ मैन. They provide us with primary and secondary products.
दे आर इकोनॉमिकली एंड एनवायरमेंटली बेनिफिशियल फॉर अ कंट्री। यानी कि फॉरेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, जंगल खास करके हमारे मानव जीवन के अंदर, जो कि हमारी प्राइमरी नीड्स है, सेकेंडरी नीड्स है, सारे प्रोडक्ट्स है प्रोवाइड करती है। इकोनॉमिकली एनवायरमेंटली बेनिफिशियल भी है, महत्वपूर्ण है, यानी कि आर्थिक और वातावरणीय महत्व भी बहुत है इसका। बोट्स एंड स्टीमर्स आर मेड अप फ्रॉम द वुड एंड द सीनरी ऑफ दिस ओके सुंदरबंस फॉरेस्ट। ज़्यादातर बोट बनते हैं। बास्केट्स, मैट्स, टॉयज, फर्नीचर एंड आर्टिस्टिक थिंग्स आर मेड फ्रॉम बैम्बू। जो भी आर्टिस्टिक चीज़ें हैं, जो भी टॉयज है, मैट्स है, बास्केट्स है, वो बैम्बू से बनते हैं। ब्रूम्स आर मेड फ्रॉम पाम एंड डेप लीव्स। पत्तों से बनते हैं ब्रूम्स। वाइल द कैटेचू इज मेड फ्रॉम कैटेचू ट्रीज। कैटेचू ट्रीज में से बनता है। ब्रूम्स का मीनिंग किसी को पता है? यस, वी यूज दिस वर्ड इन अवर डेली लाइफ। ब्रूम्स यानी झाड़ू। झाड़ू लगाते हम लोग कचरा निकालने के लिए, बस वही है। ओके, झाड़ू ही है वो। कैटेचू यानी कत्था। खैर, खास करके जो लोग वो खाते होंगे उनको पता होगा कट्ठा। कत्था से और भी चीज़ें बनती है। पेपर पल्प इज मेड फ्रॉम द देवदार ट्रीज एंड टर्पेंटाइन इज मेड फ्रॉम चीट ट्रीज। पेपर पल्प जो होते हैं वो भी बनते हैं, जो कि टर्पेंटाइन भी बनते हैं, जो यूज़ करते हैं हम लोग खास हमारी डेली लाइफ में। टी बॉक्सेस जिससे बनते हैं, चाय जिसमें हम ओके टी पढ़ते हैं वो बॉक्स। मैच स्टिक्स बनती है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स बनते हैं। आर्टिफिशियल फाइबर्स बनते हैं। एंड filaments are also made from the deodar and cheat trees. Sealing wax is used for making varnish, ink for painting, materials for electric devices and gramophones. Sealing wax यूज़ होता है वर्निश बनाने के लिए, इंक पेंटिंग का जो इंक, प्रिंटिंग का जो इंक होता है वो इंक बनाने में, और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स और मटेरियल्स और डिवाइसेस जैसे कि ग्रामोफोन्स बनाने के लिए। नाउ दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। बचाएंगे कैसे एक फॉरेस्ट को, हम बचा कैसे सकते हैं? मैनी मेजर्स हैव बीन अंडरटेकन फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। दे आर कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इज फोरबिडन। कंपल्सरी कटिंग डाउन द ट्रीज, पेड़ को काटना इट इज़ प्रोहिबिटेड, फॉरबिडन, बंद कर देना चाहिए, इलीगल घोषित कर देना चाहिए, है ऑलरेडी। सिविल पनिशमेंट विल बी गिवन टू दोज हु कट ट्रीज इलीगली। अगर कोई बिना कोई परमिशन के इलीगली ट्रीज काट रहा है तो उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। दैट इज अ टफ पनिशमेंट फॉर देम। ट्रीज शुड बी ग्रोन ऑन द वेस्टलैंड एंड पीपल शुड बी मोटिवेटेड टुवर्ड्स एफोरेस्टेशन। यानी कि हमें ट्रीज को अलग अलग वेस्ट जो एरिया है, जो कोई काम का नहीं है, वहाँ पर ट्रीज उगाने से यूज़ करना चाहिए ताकि एफोरेस्टेशन कर सके। फिर से हम प्लांटेशन करेंगे, जंगल उगाएंगे। सोर्सेस ऑफ एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी, यस सोलर एनर्जी है, बायोगैस है, विंड एनर्जी है। तो ऐसे नेचुरल एनर्जीज यूज़ करनी है हमें फॉर आवर लाइफ, फॉर यूज़ मोर वी शुड डू इट बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर एनवायरमेंट एंड फॉर फॉरेस्ट ऑल्सो। पीपल शुड बी अलर्ट एंड मेड अवेयर अबाउट एफोरेस्टेशन एंड नेसेसरी हेल्प शुड बी प्रोवाइडेड। लोगों को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो, लोग अवेयर हो, जागृत हो, और फिर से प्लांटेशन करें, जंगल उगाए, एफोरेस्टेशन करें, लोगों की और नेचर की हेल्प करें। मोर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन शुड बी एस्टाब्लिश टू डेवलप द फॉरेस्ट साइंटिफिकली। रिसर्च इंस्टीट्यूशन है जो शोध कोर संस्थाएं जो है खास करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, जंगल की, तो बढ़ा देनी चाहिए, उसका डेवलपमेंट होना चाहिए, उसका विकास होना चाहिए ताकि साइंटिफिकली डेवलप हो सके फॉरेस्ट का। एंड लास्ट, एन एनवायरमेंट शुड बी क्रिएटेड दैट कंपेल्स एवरी इंडियन टू वर्क विद रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। एनवायरमेंट बनाना चाहिए, ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करना चाहिए कि लोग ऑटोमेटिकली काम करें अपनी जवाबदारी समझकर और एनवायरमेंट को, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। सही है, जैसे आपने नीचे दो पिक्चर्स दिए हैं, वो पिक्चर्स आपको क्या करने हैं? कटिंग ट्रीज समझने हैं, देखने हैं। अगर आप कॉन्सेंट्रेट पेड़ काट रहे हो, दैट मीन्स आप लोगों को मार रहे हो, लोगों को मृत्यु की तरफ खींच रहे हो, क्योंकि ट्रीज आर वेरी हेल्पफुल फॉर मैन, ओके, इन एनी सेक्टर। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ट्रीज में से सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन हमें मिलता है, फ्रेश एयर मिलती है, ठंडक रहती है, नॉइज़ पॉल्यूशन नहीं रहता, सॉइल एरोजन, ओके, फ्लड, ये सारी चीज़ों से हमें थोड़ा बचाव मिलता है बाय ट्रीज़। अगर नेचुरली बात करें, सो सेव ट्रीज़, प्लांटेशन ऑफ ट्रीज़, डू एवरी मंथ, ओके, प्लांट ट्री,
at your nearby your home. Thank you so much. This is Snu Patel. Stay tuned with this channel. Thank you so much.